Yes. In our previous class, we have learnt about C3 pathway, that is Kelvin cycle pathway. And this Kelvin cycle pathway, it is common in all the plants, okay? But it has been seen that in addition to Kelvin cycle, there is some more cycle of events which occur in the dark reaction and which are present in some of the some of the plants which live in dry tropical regions. Okay, like maize is present, sorghum is present. So in that type of plant, in addition to C3 pathway, C4 pathway also occurs. Okay, and C4 pathway is also known, the other name for C4 pathway is Hatch and Slack pathway. So today we are going to learn about the dark reaction. One part of dark reaction, that is C3 pathway, we have already learned in our previous class, and in today's class we'll learn C4 pathway. Now, what is the use of the C4 pathway and why we are going to learn here is that we have learned about C4 pathway because it is the way where this ATP and NADPH is used as a source of energy for certain other reactions. Okay, and this CO2 is also fixed by Kelvin cycle. Now the CO2 is utilized by some other processes also, which are known as C4 pathway, and it has been seen that in some plants which are present in dry tropical regions, there some additional pathway is also is also present. Okay, and that is due to presence of a different type of anatomy present in their leaves. Okay, if we see a cut section of a normal plant which is found everywhere, and a plant and a leaf of a plant which is found in tropical region, dry tropical region, and if we compare the anatomy of leaf, then we will find two normal types of anatomy. Okay, as I have told you earlier that suppose this is a leaf. Okay, and if we uh, cut a TS, if we cut a transverse section of this leaf, it will be like this. Okay, it will be somewhat like this. This is the swollen region because this is the region for midrib. Okay, so it has been seen. This is the anatomy. I'm discussing the anatomy of normal leaf. Okay, which is a leaf which is of a common plant where C3 cycle or Kelvin cycle occurs. Then we will find that the cell in which the chloroplast is present, which are also known as the mesophyll cells. And mesophyll cells are of two types, as I have told you earlier also. Some cells, they are compactly arranged, okay, parallel to each other with very less intercellular space between them. And that is known as the bundle sheath cell. And the second one, where air gaps is present between the cells, they are known as the spongy cell. Okay, so what is found? It has been found that this I am talking about the leaf which is present, which is taken or which is plucked from a plant which is found everywhere. Okay, so that particular type of leaf, it bears cells in which chloroplast is there. Okay, and chloroplast is able to carry out the process of photosynthesis. And the cells in which chloroplast is present, they are known as mesophyll cells. उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें mesophyll cells कहते हैं. Okay, now this mesophyll cells, so at last we can say that all the cells in which photosynthesis is taking place, they are known as the mesophyll cells, right? Okay, so we have seen that there are two types of cells which form a part of mesophyll cells. The one type of mesophyll cells are the spongy cells, where there is loose gap, where there is an air gap between the cells. It means that the cells are loosely packed. Okay, so they are known as the spongy cell. Whereas there are some cells where they are compactly arranged uh,
they are compactly arranged, they are attached to one another, and there is almost no intercellular space between them, or very, very less intercellular space between them. So that type of cells are known as bundle sheath cells. Okay. So normally it has been found that in normal leaf, this type of arrangement is found, that below epidermis will find certain bundle sheath cells, and then we will find certain spongy cells, and there we can find the vascular tissue also, xylem and phloem. So this is the normal anatomy of a leaf. Okay. Now suppose if we have plugged a leaf where the C4 pathway occurs, or we have plugged a leaf of maize, rice, sorghum, or a plant which is from dry tropical region, then we can find a different type of anatomy. हमें एक दूसरी तरह से anatomy हमको देखने को मिलती है. Okay, so वहां पे क्या है कि suppose this is the vascular bundle. Okay, vascular bundle में क्या क्या present होगा? In vascular bundle, xylem is also present and phloem is also present. Okay, so this one is vascular bundle. Now it has been found that around vascular bundle, the compactly arranged bundle sheath cells, they are present in several layers. Okay, so compactly arranged bundle sheath cells, they are all around the vascular bundle. And since they are present all around the vascular bundle, therefore they are known as the bundle sheath cells. Okay, like this. This type of arrangement is found in the leaf of a plant which belongs to a dry tropical region. Okay, and this is what? This is vascular bundle. So this bundle sheath cell, they are present in several layers. Okay, and they are present all around the vascular bundle. And then the spongy cells, which are the other type of mesophyll cells, they are present somewhat here. Okay, spongy cells may be present here. Inside the spongy cells, between the spongy cells, certain intercellular gaps may be present. Okay, suppose this is the intercellular gap. This is spongy cell, this is spongy cell, this one is spongy cell. Between the spongy cells, certain intercellular gaps may be present. Okay, this one is the intercellular gaps. So first, the vascular bundle is enveloped by the bundle sheath cells, and the spongy cells, they are present around the bundle sheath cell. This type of anatomy of leaf is known as Cran's anatomy. Okay, this is known as Cran's anatomy, and it is basically presence of this particular type of anatomy of leaf, which is a special feature of that plants, of that leaves, which are present in a dry tropical region. Now, what is the use of this, and what is the special feature about? One special feature, if I say according to its anatomy, we can see here. The another special feature about this type of anatomy is that in addition to C3 pathway, C4 pathway also occurs here. ठीक है? C3 pathway तो हो गई. क्या मैंने बताया था? C3 pathway is the method of dark reaction which takes place, dark reaction of photosynthesis, which takes place in all the plants. Okay. In addition to C3 pathway or Calvin cycle, there is another pathway which is known as C4 pathway, and which is present the C3 and C4 pathway. These both the types of pathway are present in the leaves which have Cran's anatomy. Okay. So I will show you the picture also of Cran's anatomy. So from there you will learn the difference, okay, between a normal cell and a normal leaf cell, and a cell which is extracted from the leaf which has a Cran's anatomy. Okay, so there the C4 pathway is also present. Okay, and there is a reason. In Calvin cycle, we have learned about the enzyme, and the name of the enzyme is ribosco. Okay, if you remember, in the last class, I have told you that we'll read about ribosco enzyme in detail afterwards. Okay, so this ribosco enzyme, it is the most abundant. R-U-B-I-S-C-O, ribosco.
Okay, so this ribosco enzyme it is the most abundant enzyme which is present in plant. ठीक है, सारे green plants में ये enzyme present होता है. And you all know that Kelvin cycle takes place because of ribosco, because this enzyme helps in the कार्बोजाइलेशन रिएक्शन. ये रिबोस्को एंजाइम हमने C3 साइकिल में पढ़ा था, जहां पे ये क्या करता है, ये हेल्प करता है RUBP रिबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को किससे कंबाइन करवाने में ये हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना, तो वहां पे ये रिबोस्को एंजाइम जो है ये CO2 को किससे, रिबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से कंबाइन करने में ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, सो दैट द CO2 इज फिक्स्ड. एंड इफ यू रिमेंबर द C3 साइकिल, अगर आप अपना C3 साइकिल याद रखोगे तो उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कार्बोजाइलेशन, उसमें CO2 जब रिबोस्को एंजाइम CO2 को रिबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से कंबाइन करवाता है, तो पहला जो हमारा सब्सटेंस बनता है दैट इज एक्चुअली अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, तो वहां पे हमारा जो पहला कंपाउंड बना है वो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, phosphoglycerate. ठीक है, एंड phosphoglycerate इज अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड. ये आपको याद रखना है. ठीक है, 1 CO2, ये जो 1 CO2 है ना, 1 CO2 plus ribulose 1,5 biphosphate, which is the carbozylation reaction. In that, when both of them have combined together, then 2 molecules of 3 carbon atom compound PGA is formed. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंपाउंड बनता है कार्बोजाइलेशन के बाद, किसमें, C3 पाथवे में. ठीक है, अब क्या होता है, इसके लिए ये जो रिबोस्को एंजाइम है ये प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में. कितनी बात समझ में आई? ओके, I'm explaining you the reason why C4 pathway takes place. What is the need for C4 pathway? In normal conditions in all the plants, ribosco enzyme is present which act as a catalyst for catalyzing the reaction of CO2 with ribulose 1,5 biphosphate to generate 2 molecules of 3 carbon atom phosphoglycerate. ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में बनता है, बट इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जो रिबोस्को एंजाइम है it should be present where? It should be present in the mesophyll cell. But again we'll move back to dry tropical region. यहाँ पे जो प्लांट मिलते हैं इनके जो इसमें ये जो बंडल शीट सेल्स है, ओके, if you have your book you can open this page number 219 खोला. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि जो C4 प्लांट्स हैं, जिनमें भी ऐसे सारे प्लांट्स वेयर द C4 pathway takes place, they are known as the C4 plants. So in all the C4 plants, what happens? This ribosco enzyme is absent in the mesophyll cell. ये mesophyll cell में present नहीं होके ये कहाँ पे present, ये bundle sheath cell में present होते हैं. ठीक है, so वहां पे क्या होगा, मेसोफिल सेल्स में C3 साइकिल हो ही नहीं सकती है क्योंकि वहां पे रिबोस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं है. जबकि नॉर्मल ऑल सारे प्लांट्स के सारे जितने भी मेसोफिल सेल्स है सब जगह रिबोस्को प्रेजेंट होता है अगर वो C3 प्लांट है जो नॉर्मल प्लांट होता है. बट C4 प्लांट में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स लैक दिस एंजाइम, रिबोस्को एंजाइम वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है. रिबोस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल्स में, यहाँ वाले सेल्स में. तो C3 साइकिल जो होता है वो बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओके. इसके एडिशन में अब जो मेसोफिल सेल हमारा बच गया, मेसोफिल सेल में हमारा C4 पाथवे हो जाता है. ठीक है ना,
तो जो रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस होती हैं वो हमारी होती हैं मेसोफिल सेल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम दैट इज नोन एज PEPKs। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एक और एंजाइम आएगा, आप बुक में देख सकते हो पेज नंबर 219 में, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट PEP। और ये तो हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, सॉरी इट इज द एक्सेप्टर। जो हमारा एंजाइम है दैट इज PEP कार्बोजाइलेस और PEP केस जो मैंने आपको बताया, PEP केस, it is the enzyme which act as for catalyzing the reaction between CO2 and the first acceptor for the CO2। ये तो नॉर्मल का था, लेकिन C4 पाथवे में क्या होगा, C4 पाथवे में ये जो PEP केज एंजाइम है ये CO2 को हेल्प करेगा ज्वाइन करने में फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2, and that is what a 3 carbon atom molecule which is phosphophenol pyruvate। तो यहाँ पे आपका CO2 किससे कंबाइन करेगा, PEP, ये भी 3 कार्बन एटम कंपाउंड है। ठीक है, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, PEP केस। और ये जो PEP केस है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मेसोफिल सेल में। लेकिन केल्विन साइकिल के लिए जो रिबिस्को एंजाइम चाहिए वो मेसोफिल सेल में नहीं होके वो प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल में। इसीलिए C3 साइकिल जाके कहाँ पे होगी, बंडल शीथ सेल में। और रिमेनिंग जो भी C4 पाथवे की जितनी भी रिएक्शंस है वो सब कहाँ पे होंगी, आपकी मेसोफिल सेल में। वहां पे क्यों होगी, क्योंकि जब CO2 एंटर करेगा तो इस CO2 को एक एक्सेप्टर चाहिए, वहां पे रिबिस्को नहीं है मेसोफिल सेल में। So CO2 is accepted by the first acceptor of CO2 which is PEP, and this reaction is catalyzed by enzyme which is known as PEPKase। ठीक है ना, तो I think now it is clear the need of Kranz anatomy। ये चीज, ये पिक्चर क्लियर हुई आपको, तो मैं आगे मूव करूं। यस बच्चों, ये स्टूडेंट्स, यस मैम। ये आज इतने बच्चे कम क्यों हैं, फिर भी तो 16 तो रहते थे, आज तो 10 ही दिख रहे हैं मुझे। ये छुट्टी, मुझे लग रहा है पूरी क्लास होते तो सारे के सारे आ जाएंगे अटेंडेंस लगवाने के लिए, वापस चेंज करना पड़ेगा, शुरू की अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। ओके, जो भी है कम से कम मैं क्लास उन्हीं के लिए ले लूंगी, जो नहीं आएगा वो मिस ही करेगा। ओके, so now we have understood the need of Kranz anatomy and it will be more clear by certain pictures and certain diagrams. So there we'll see what is the anatomy of what is Kranz anatomy, and we'll read about the Hatch and Slack C4 pathway in today's class। Okay, so over to the screen। जहां पे भी आपको नहीं समझ में आता प्लीज आप वहीं पे पूछ लेना, क्योंकि फिर इतनी डिटेल में आगे की क्लास नहीं हो पाती, राइट। We'll do afterwards, we'll do only revision so that we don't have enough time to get into detail of every topic, right, during revision। So better if you have a doubt you can ask it here। Student, the slide is before you, it is visible? यस मैम। Okay, yeah, this is C3 pathway that we have seen yesterday। Okay, so in the C3 pathway, we have seen that this ribulose 1,5-biphosphate, it combines with CO2, okay, and this reaction is catalyzed by an enzyme. And what is the name of that enzyme? Yes, spell it. What is the name of that enzyme? Ribisco. यहाँ पे अच्छे से Ribulase biphosphate carboxylase।
हाँ, मैं लिख नहीं पा रही हूँ आपसे ढंग से। दिस इज रिबिस्को, ठीक है। सो रिबिस्को कैटालाइजेस दिस रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट विद दिस CO2 एंड द रिएक्शन इज नोन एज कार्बोजाइलेशन। जो रिएक्शन उसको कार्बोजाइलेशन कहते हैं। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ two molecules of 3 carbon atom compound, that is phosphoglycerate, which is PGA। तो कार्बोजाइलेशन के बाद ये एक MCQ क्वेश्चंस आते हैं that what is the first compound formed after carboxylation? So the answer will be PGA, ठीक है ना। तो ये मुझे आपको बताना था। अब यहाँ से आपको हमें पता चल गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Yes, now the C4 pathway. So as I have told you that this C4 pathway is present, it is present or it is found normally in the plants which are adapted to dry tropical region. Okay, and here the CO2 combines with PEP, okay, phosphophenyl pyruvate to form a first stable compound. फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट में कितने कार्बन एटम्स है? 3, आपको बताया ना मैंने। ओके, सो ये जो 3 कार्बन एटम्स हैं ये कंबाइन करेंगे CO2 से, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने बन गए? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके बन गए 4। सो ये 4 कार्बन एटम स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म विच इज नोन एज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, ठीक है। ओके, सो ये C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कैसे बना? जब ये जो CO2 है ये कंबाइन करता है PEP, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट, और फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन एटम कंपाउंड है, तो इसका 3 कार्बन और इसका 1 कार्बन मिलके एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है विच इज नोन एज C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड इसके वजह से इस साइकिल का नाम है C4 पाथवे, राइट। ओके, so the plant with C4 pathway does not follow Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। जहां पे C4 pathway होता है वहां पे मेन साइकिल C4 होता है, C3 नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। they can tolerate higher temperature as they show a response to response to high light intensity। नॉर्मली जो C4 प्लांट्स होते हैं दे कैन टॉलरेट वेरी हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू C3 पाथवे। द सेकेंड थिंग इज दैट दे कैन रेस्पॉन्स इवन टू हाई लाइट इंटेंसिटी। अगर कम लाइट है तो वहां पे केवल C3 पाथवे वर्क करेगा, बट जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे C4 पाथवे भी प्लांट अच्छे से उनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ओके, एंड वहां पे एक एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस होता है विच इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन, दैट विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स। तो इसके वजह से C4 पाथवे में ये फोटो रेस्पिरेशन नॉर्मली नहीं होता है, देयरफॉर C4 pathway has a greater productivity of biomass। ओके, ये याद रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता है एंड देयरफॉर देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ओके, एंड दिस इज द अडेप्टेशन। Yes, this is all about the Cran's anatomy। Okay, C4 plants और C3 plants की अगर एनाटॉमी लिखने के लिए आएगी आप इजीली बता सकते हो कि वहाँ पे बंडल शीथ सेल जो होते हैं वो वैस्कुलर बंडल्स के बगल में मतलब साइड में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन मेनी लेयर्स, सेवरल लेयर्स। ओके, ओके, एंड देयर इज स्पेशल फीचर अबाउट द बंडल शीथ सेल्स। सबसे पहले क्या है? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे होते हैं। थिक वॉल्स थिक होती है। इम्पर्वियस टू गैसियस एक्सचेंज, जल्दी कोई गैस जो है वो इजिली एक्सचेंज नहीं होती है, O2 CO2 होगा उसके अलावा, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। So this is the special feature about the cells which are present in the Cran's anatomy in the bundle sheath cells, right? Okay, now the pathway followed by C4 plants is known as Hatch and Slack pathway, and again it's a cyclic process. Students, here now you can see a blue screen over here, in front of you. So this blue screen, it shows the leaf anatomy of a C4 as well as a C3 leaf. Okay, now Cran's means what? Wreath. Okay, means many layers. जर्मन में wreath मतलब क्या होता है? many layers, वहां से ये word आया। Normally whatever scientific words are there, they came from either their Latin or their German
ओके, सो जहाँ पे भी ये पहले बनाया गया, देखा गया, या इसको जिसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, तो ये सारे वर्ड्स नॉर्मली एक लैटिन और इसमें ही आते हैं, ठीक है, जर्मन में, ठीक है। तो C3 पाथवे का देखो, जो मैंने आपको बताया कि मेसोफिल सेल्स आर द सेल्स विच हैव व्हाट, विच हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम। अगर ये पैरेलली अरेंज सेल्स होते तो उनको हम पैलिसेड कहते हैं। अगर इनके बीच में गैप होता है तो हम इन्हें कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, ठीक है। अब हम C4 लीफ की देखेंगे। C4 लीफ में ये तो रहे आपके बंडल शीथ सेल, मिडल वन, राइट, ओके। एंड इन द जस्ट अराउंड द bundle sheath cells you can find, sorry, around this vascular bundles you can find this bundle sheath cells, bundle sheath cells ये present है। और इसके बगल में आपके जो ये यहाँ पे सारे बंडल शीथ सेल्स हैं, एंड उसके बाद आपके जो दूसरे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये लीफ एनाटॉमी है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द, यहाँ पे अभी आपको एक ही लेयर दिख रही है, देयर कैन बी मेनी लेयर्स of bundle sheath cells, right? Okay, next one. ये स्क्रीन लाइट ब्लू कलर की स्क्रीन, आप स्क्रीन इज फ्रंट ऑफ यू, ये स्टूडेंट, इज द लाइट ग्रीन Yes, ma'am. स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू? ओके, नाउ ये अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, जिसको भी नहीं समझ में आएगा प्लीज यहीं पे पूछना। दिस इज द सेम डायग्राम ऑफ योर बुक, ठीक है। इतना बड़ा डायग्राम बुक में बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए द बोर्ड पे, सो हेयर आई हैव टेकन दिस स्लाइड। अब सबसे पहले क्या होगा, देखो मेसोफिल सेल्स ये ऊपर वाला है, यहाँ पे क्लियरली आपको पता रहना चाहिए मेसोफिल सेल ऊपर वाला है, नीचे है आपका बंडल शीथ सेल, ठीक है, ओके। अब मेसोफिल सेल्स में, अच्छा यहाँ पे मैंने एंजाइम को लेके क्या डिफरेंस बताया? Yes, anybody from the class? I cannot see the names of the students who are in the class. So anybody from the class who can say what are the types of enzymes which are present in these two cells? आपको एंजाइम्स के नाम बताने हैं, और वो एंजाइम इन दोनों सेल्स में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी बताने हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बोर्ड पे बताया, कौन बताएगा? यस बच्चों, Phosphenol pyruvate is present in mesophyll cells. फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल, राइट, ठीक है ना। और दूसरा, द सेकेंड वन, PEP carboxylase. no, PEP carboxylase is the first enzyme which is present in the mesophyll cell. I'm asking about the second enzyme. The second type of enzyme is? OAA. No, it is रिबिस्को। अभी बताया ना आपको बोर्ड पे कि एक एंजाइम तो रिबिस्को प्रेजेंट है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल में। रिबिस्को एंजाइम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बंडल शीथ सेल में। यहाँ से मैं आर लिख देती हूँ सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज, ठीक है। रिबिस्को एंजाइम क्या, कौन सा प्रोसेस करने में हेल्प करता है बताओ? अभी बताया था बोर्ड पे, ये स्टूडेंट्स, C3, ओके। रिबिस्को एंजाइम्स हेल्प्स इन C3 पाथवे, ठीक है। और रिबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है। दूसरा है जो मैंने आपको बताया, दैट इज PEP, ठीक है। दूसरा एंजाइम कौन सा है? PEPK, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। और ये क्या करता है? ये कैटालाइज करता है रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट, PEP। अगर PEPK लिख दो तो वो एंजाइम हो जाए, और PEP लिख दो तो वो फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे SCO3 इसलिए लिखा हुआ है जस्ट टू शो द कार्बोनेट, ओके। CO2 is absorbed or it gets added to any substance in the form of carbonate ions, ठीक है, आयोनिक फॉर्म में। तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन है, राइट। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, आपका CO2 फिक्स हो जाएगा और एक एसिड बनेगी which is C4 acid, and the name of this is oxaloacetic acid, OAA, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड से एक एटम आया और फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट से 3 एटम्स कार्बन की आए, तो कंबाइन करके पहली एसिड बनेगी जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, O A और A,
ठीक है, तो ये C4 एसिड बन गई। अब ये जो C4 एसिड है, इट डोंट रिमेन हेयर, इट गेट्स चेंज इनटू सब्सटेंसेस लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। आपको ये याद रखना है कि जो C4 एसिड है ये ब्रेक हो जाती है दो तरह की एसिड में, मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, एंड बोथ ऑफ देम they are transported from the mesophyll cells to the bundle sheath cell। वो mesophyll सेल से निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्या C4 एसिड, फिर से बता रही, जो C4 एसिड है इट ब्रेक्स इनटू breaks नहीं, it changes into another acid which is known as malic acid or aspartic acid, and they get migrated to the next bundle sheath cell, okay, here, and this is it is shown here by transport। Okay, so what is transported? C4 acid is transported। एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों ही C4 एसिड है, इसलिए यहाँ पे C4 लिखा है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो C4 एसिड है ये जाके इसमें से CO2 बाहर आ जाएगा, मींस C4 एसिड गेट स्प्लिटेड इनटू 1 CO2 एंड अ C3 एसिड। तो जो C4 एसिड है वो ब्रेक हो गई है और उसमें से एक CO2 बाहर आ रहा है। सिंस द CO2 इज कमिंग आउट, therefore this reaction is known as decarboxylation। The addition of carbon dioxide is known as carboxylation and the release of CO2 is known as decarboxylation। C4 एसिड जब ब्रेक हो गई तो उससे रिलीज हुआ एक CO2 और C3 एसिड, ठीक है। ये जो C3 एसिड है ये अगेन बंडल शीथ सेल से निकल के कहाँ पे आ जाएगी, ये आ जाएगी मेसोफिल सेल में बैक। So again, the C3 acid will come from bundle sheath cell to mesophyll cell here. This is C3 acid, and it gets regenerated. This will form again what? It will form PEP. So the PEP is regenerated. जैसे C3 साइकिल में रेबुलोज बाय 1,5 बाइफॉस्फेट रीजनरेट होता है, उसी तरह से यहाँ पे C3 एसिड रीजनरेट करेगी किसको, PEP, which is फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, ठीक है। अब हमारा बच गया था बंडल शीथ सेल में CO2, ठीक है। तो ये CO2 क्या होगा, ये CO2 यूज हो जाएगा, रिबिस्को इसको यूज करेगा और यहाँ पे हो जाएगा केल्विन साइकिल, क्योंकि रिबिस्को एंजाइम मैंने आर कहाँ लिखा था, आर प्रेजेंट है नीचे वाले में, ठीक है, नीचे वाले सेल में, विच इज अ बंडल शीथ सेल। देयरफॉर द C3 pathway will occur here। It means in this whole representation we have found that CO2 is also fixed, okay, यहाँ पे हमारा CO2 भी फिक्स हो गया है। 2 types of enzymes are also used, 2 different processes also occur, so the whole is known as Hatch and Slack pathway, right। बेटे ये हैच एंड स्लैक पाथवे, यहाँ पे भी जो डायग्राम दिख रहा है इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो यही पूछ लो, सो दैट आई कैन मूव फर्दर। यस बच्चों, स्टूडेंट्स आर यू देयर? स्टूडेंट्स आर यू देयर? Yes, ma'am. और ये बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं आजकल, शादियों में जा रहे हैं क्या? सारी वो शुरू हो गए हैं, शादियां वादियां होने शुरू हो गई, दिन पे दिन स्ट्रेंथ ही कम होती जा रही है। कहीं पे भी जाओ, आप भी जाओ फंक्शन अटेंड करने के लिए, हम मना नहीं करते, बट यू कैन टेक योर मोबाइल। दिस ऑनलाइन टीचिंग का यही तो बेनिफिट है, यू कैन कीप योर मोबाइल एंड यू कैन सी वीडियोस एवरीवेयर, यू कैन डोंट मिस द क्लास, ओके। इफ यू मिस अ सिंगल क्लास देन हाउ मेनी थिंग्स यू कैन नॉट, मीन सो मेनी थिंग्स यू कैन नॉट रिकलेक्ट एंड यू कैन नॉट रीजॉइन। अगर एक भी क्लास जिसने C3 साइकिल नहीं पढ़ा उसको C4 साइकिल तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और जिसने 8 की क्लास अगर ये अभी ये वाला नहीं समझ में आया डायग्राम, तो आगे का आपका फोटो रेस्पिरेशन का कंसेप्ट तो और नहीं समझ में आएगा। तो एवरी कंसेप्ट इज लिंक टू अदर। तो उसमें क्या होता है, क्लास नहीं अटेंड करने में ये जो एक आपकी रेगुलरिटी वो मेंटेन नहीं रहती और सब मिस हो जाता है बीच का। फिर आप एकदम से सारी चीजें पढ़ने बैठोगे तो बेटा बहुत टीडियस टास्क है, एक बार में तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए ट्राई टू बी रेगुलर, जो रेगुलर है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं है उनको भी बोला करो कि डोंट मिस द क्लास, ओके। चलो ये तो हुआ, आप ही बताओ कि मैम यस इस स्लाइड में कुछ मुझे समझाना है और आई कैन मूव फर्दर। मैम हाँ बोलो।
Ma'am, what is the function of plasmodesmata and C4 cycle? देखो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा, यस यहाँ पे लिखा है ना प्लाज्मोडेस्मेटा. प्लाज्मोडेस्मेटा इज एक्चुअली अ चैनल which helps in transportation of the C4 acid to the bundle sheath cell. जो C4 acid बना है वो कहाँ पे बना है, वो बना है मीजोफिल सेल में. बट ये C4 acid क्या होता है, ये माइग्रेट हो जाता है मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में. तो माइग्रेशन तो तब होगा ना when there is our channel. So plasmodesmata, they provide channel which helps in transfer of the C4 acid to the bundle sheath cell. Again, then the C3 acid which is formed here, जब C4 break हो जाएगा तो ये जो C3 acid बन रहा है ना, ये C3 acid again transport होता है from bundle sheath cell to mesophyll cell again by plasmodesmata. So plasmodesmata refers to the channels which interconnect two different cells. And here they are connecting the mesophyll cells and the bundle sheath cells. Not clear? Yes, ma'am. Okay, so we'll move further. Now, this is the concept of photorespiration. और ये मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी कॉपी में लिखो. ओके, सो दिस फोटोरेस्पिरेशन अकर. अब आपने C3 पढ़ लिया, C4 क्रैन्स एनाटॉमी से पढ़ लिया. अब एक अलग तरह का कंसेप्ट आ रहा है विच इज नोन एज फोटोरेस्पिरेशन. ओके, so we'll see here photorespiration. Photorespiration occurs when रिबिस्को, ये जो रिबिस्को है, कौन सा रिबिस्को, क्या एक एंजाइम है, ठीक है. इस रिबिस्को एंजाइम के बारे में मुझे एक चीज आपको ये बताना था कि जो नॉर्मल कंडीशन में जो रिबिस्को है इट कंबाइंस विद CO2. ओके, बट कभी कभी सेल में क्या हो जाता है कि CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है. तो जब CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये जो रिबिस्को एंजाइम है ये ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर सकता है. तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर देन दिस RUBP or Ribisco enzyme combines with CO2 to form the C3 cycle. But when the concentration of CO2 is less, at that time this RUBP combines with oxygen. So याद रहेगा, जब ज्यादा CO2 है तो Ribisco किससे कंबाइन करेगा, CO2 से. जब लेस कंसंट्रेशन है CO2 की तो Ribisco किससे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से. ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिबिस्को एंजाइम CO2 से ज्वाइन ना करके किससे ज्वाइन करता है, ऑक्सीजन से. ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, ये देखो मोर CO2 और यहाँ पे लेस O2 दिया है. मोर CO2 से रिबिस्को नॉर्मली CO2 से कंबाइन करता है और इससे आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज बनता है. तो व्हेनेवर ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इट्स अ गुड थिंग. जब भी ग्लूकोज बनेगा तो एक अच्छी बात है क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस है. बट व्हेन द CO2 इज लेट तो उसमें क्या हो जाएगा, RUBP O2 से कंबाइन कर जाएगा. जब RUBP O2 से कंबाइन होगा इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. When photosynthesis will not take place, the process that takes place is photorespiration. And during this, glucose is not produced. Glucose नहीं बनता है. Since glucose is not formed during photorespiration, therefore photorespiration is considered as a waste for the plant. प्लांट जो है फोटो रेस्पिरेशन को एक वो प्लांट के लिए फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है. व्हाई? बिकॉज हेयर द रिबिस्को एंजाइम कंबाइंस विद O2 and because of that photosynthesis cannot occur. फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होती है और इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन जो है ये क्या है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है. ठीक है, और ये कब होगा, ये तब होगा जब CO2 की कंसंट्रेशन कम है. इट मींस कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो इसके लिए CO2 की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए हमेशा प्लांट में, ज्यादा. अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ही वो CO2 से कंबाइन करेगा कौन, RUBP, और हमारा ग्लूकोज बनेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर अब बनता क्या है, जब RUBP CO2 से कंबाइन करता है तो C3 पाथवे में हमने देखा कि ये RUBP CO2 से जब कंबाइन करेगा रिबिस्को एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा तो हमारे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA. ठीक है, ये तो हमने केल्विन साइकिल में देखा. ये तो नॉर्मल हुआ जब CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है. अब हम ये मानते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन हो गई है कम.
जब CO2 की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये जो RUBP है ना, ये रिबिस्को एंजाइम, ये हेल्प करेगा RUBP को किससे कंबाइन करने में, ऑक्सीजन से। ठीक है, ओके। और जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगा, और क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस 3 कार्बन atom PGA is formed along with formation of phosphoglycolate, और उसके साथ CO2 रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो। ओके, अच्छा मुझे कौन बताया क्लास में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिबिस्को एंड RUBP? रिबिस्को और RUBP में क्या डिफरेंस है? Yes, students, what is the difference between Ribisco and RUBP? Should I say? Yes. Should I say the answer? बेटा yes no तो बोलो। मैम कैन आई? हाँ देखो, RUBP बेटा रिबिस्को एंजाइम का नाम है। मैम रिबिस्को, RUBP has 5 atoms of carbon and a हाँ phosphate group हाँ, and रिबुलोज Rubis बाइफॉस्फेट एक सब्सटेंस है जो CO2 से कंबाइन करता है। ठीक है ना, और रिबिस्को इस एंजाइम, एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, रिबिस्को एंजाइम है, RUBP एक सब्सटेंस है विच कंबाइंस विद CO2। तो आपके नॉर्मल कंडीशंस में जब CO2 का हाई रेशियो होता है और टेम्परेचर लो है, उस टाइम पे ये CO2 है ये RUBP से कंबाइन करके क्या बनाता है, केल्विन साइकिल होता है, उस समय फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस बनेगा तो ग्लूकोज आपका क्या होगा, ये रिलीज होगा। ठीक है, अब ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन, ये तो हुई आपकी नॉर्मल कंडीशन। अब एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, CO2 का रेशियो कम हो जाता है। ओके, देन अब ये जो RUBP है किससे कंबाइन करता है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और एक ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होती है, ग्लूकोज यहाँ पे नहीं बनेगा, देयरफॉर इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस। ओके, और इसी वजह से मैं एक वापस उस स्लाइड पे आपको जा रही हूँ। यस, अब मैं इस वाली स्लाइड पे वापस आ रही हूँ आपके लिए। इसके बाद आपकी कोई क्लास है बेटा? नो मैम। नहीं है ना, तो मैं इस लेसन, हाँ बोलो। 5 मिनट्स और लगेंगे बस क्लास के लिए ना। ओके, टाइम, यस। नाउ हियर यू कैन सी, ये फोटो रेस्पिरेशन अब आपको समझ में आ गया। मैं फोटो रेस्पिरेशन से लिंक कर रही हूँ ये आपका डायग्राम। ठीक है, क्रांज एनाटॉमी में क्या होती है कि C4 एसिड बनने के बाद जब ये C4, ओके, नाउ क्रांज एनाटॉमी में क्या होता है, C4 एसिड बनी है रेड वाली जो मार्क कर रही हूं मैं। ओके, व्हेन द C4 एसिड ब्रेक्स, one CO2 is formed and C3 acid is formed. Okay, therefore the concentration of CO2 is increased in Cran's anatomy. नॉर्मल वे में भी बाहर से भी CO2 आ रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन से, और बंडल शीट सेल में CO2 यहां से भी बन रहा है, तो हायर कंसंट्रेशन होगी CO2 का, देयरफॉर C3 साइकिल होगी, एंड दिस इज the reason why photorespiration is absent in C4 pathway. C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, और C3 प्लांट में कहीं कहीं पे फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। कैसे नहीं डिक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे C4 एसिड है, ये ब्रेक होके क्या बना रही है, ये CO2 एडिशनल CO2 बना रही है, और CO2 बाहर से भी डिफ्यूज होके आ रहा है। तो इसके वजह से CO2 का कंसंट्रेशन हमेशा हायर रहता है बंडल शीट सेल में, एंड देयरफॉर केल्विन साइकिल विल ऑलवेज टेक प्लेस। देयरफॉर इट
C4 pathway is not at all a wasteful process. Okay. Now, factors. Now we are going to. Yes, anybody from the class who can say me the time. Time क्या हो रहा है? So accordingly. 12:50. Yes. 12:50. 12:50. 12:50. 12:50 हो रहा है ना? Okay. So I will take only 5 minutes and I will complete this. Okay. I will complete the factors which affect the photosynthesis. Okay. So here, let us discuss the factors which affect the process of photosynthesis. The first one is light. ये मैं लॉ बाद में कराऊंगा आपको हम लोग करेंगे. फर्स्ट है आपका लाइट. सी लाइट में है if light is low, if there is low intensity of light, there will be a linear relationship between incident light and carbon fixation. मतलब कम लाइट होगी तो कम कार्बन फिक्स होगा, इतना. ठीक है ना? अब इसमें क्या हुआ, एट हाई लाइट इंटेंसिटी, व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस. ओके, तो व्हेन ये कर्सर बेटा दिखता नहीं है कभी कभी. यस, this at a high light intensity, what will happen, the rate does not go show further increase because of other factors become limiting factors. यहाँ पे limiting factor का मतलब होता है एक ऐसा factor, यहाँ पे जो हम will come to the Blackman's law of limiting factors. Okay. Okay, so we'll come to this Blackman's law of limiting factors. Here, it's a chemical process in which the process is affected by more than factor. जैसे photosynthesis का है process है, उसमें क्या क्या रोल अपने प्ले करते हैं. लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, CO2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है ना? सो जहां ऐसे सारे प्रोसेस जहां पे एक से ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व है, वहां से अगर हमें इसे रेट निकालना होगा, so the rate of photosynthesis will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affect the process if its quantity is changed. Suppose करो कि photosynthesis का रिएक्शन हो रहा है और एकदम से उसका रेट बढ़ता है या घटता है. ठीक है, तो उस टाइम पे जिस पर्टिकुलर फैक्टर के वजह से उसका रेट बढ़ा है, दैट इज द मेन फैक्टर. ओके, तो नॉर्मली क्या बताया गया कि जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी अगर कम रहती है तो कार्बन फिक्सेशन उसी के साथ ही कम रहता है. जैसे जैसे लाइट हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग. क्योंकि लाइट के साथ साथ CO2 का भी बहुत रिलेशन है. इसके साथ CO2 को जब हम बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ जाता है. टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल. तो लाइट का आगे कोई फर्क पड़ता नहीं है. अब ये नेक्स्ट स्लाइड में जाके आपको क्लियर होगा. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर हम टेम्परेचर देखें, लाइट देखें, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे हमने परसेंटेज कम करी, RUBP ने कंबाइन किससे कर लिया, O2 से, तो वहां पे तो हमारा फोटोसिंथेसिस होना ही बंद हो जाएगा. देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, और इसी वजह से वो लिमिटिंग फैक्टर है. क्योंकि अगर इसके साथ टेम्परेचर भी प्रेजेंट रहा, लाइट भी प्रेजेंट रही तो भी कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द मेजर फैक्टर विच डिसाइड्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है ना? और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी, 0.03 से 0.04. जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है 0.5 तक कार्बन फिक्सेशन बढ़ जाता है. और इसके बाद अगर होगा तो बहुत ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो उससे फोटोसिंथेसिस क्या होगा, वो नीचे आ जाता है. ठीक है, एंड इंक्रीज बियॉन्ड दिस लेवल कैन डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स. नेक्स्ट, टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर डायरेक्ट लिंक करेगा आपका एंजाइम से. ओके, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंजाइम दे विल वर्क more on optimum temperature. So if the temperature is optimum, your enzymes will work efficiently. ठीक है, हमने क्या अभी देखा था, C4 प्लांट जो है हायर टेम्परेचर पे काम कर पाते हैं एज कम्पेयर टू C3 पाथवे. ठीक है, तो C4 प्लांट्स के जो एंजाइम्स है वो हायर टेम्परेचर पे भी वर्क कर लेते हैं एज कम्पेयर टू C3 पाथवे. बट नॉर्मली एंजाइम्स में क्या होगा, एंजाइम्स दे डोंट वर्क बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर. लेस अगर टेम्परेचर का रहा तो भी एंजाइम्स वर्क नहीं करते, ज्यादा टेम्परेचर रहा तो भी एंजाइम
डीनेचर हो जाते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होने की वजह से जितना, सपोज करो कि हम ऑप्टिमम टेम्परेचर मानते 37 पे बहुत अच्छे से एंजाइम काम करेंगे। 37 से कम करेंगे तो भी रेट कम हो जाएगा, 37 से ज्यादा अगर करेंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, ओके। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, वाटर डायरेक्टली प्लेज अ गुड इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि वाटर कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर इज द मेन event, the photolysis of water is the main event for release of O2. अगर ऑक्सीजन ही, वाटर ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज हो ही नहीं पाएगी, therefore photosynthesis cannot take place. So water stress results in closing of stomata, thus reduce the availability of CO2. अगर वाटर कम होगा तो स्टोमेटा बंद रहेंगे, स्टोमेटा बंद रहेगा तो CO2 डिफ्यूज भी नहीं हो पाता है। तो वाटर का दोनों तरफ बहुत रोल है। वाटर अगर ढंग, मतलब if it is present in a good amount, then oxygen is released and CO2 will be diffused inside the plant with the help of the leaves, right? So students, it is the time for your attendance. So there are these 3 and 4 factors we have seen which have a direct influence on the rate of photosynthesis. कौन-कौन से factors हमने पढ़े? Light, फिर हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, देन वी हैव लर्नड अबाउट टेम्परेचर, ठीक है, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? वाटर, ठीक है। Water. So don't leave the class. I have to take your attendance. देखो अभी अटेंडेंस लेने का टाइम आया तो 14 बच्चे हो गए, अभी 10 ही थे। दीपल प्रेजेंट, हर्षित रोल नंबर 3 प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ज्योति मीना प्रेजेंट। एडविन नहीं आया? Present, ma'am. एडविन नहीं था क्लास में? No, ma'am. ठीक है, ओके। रोल नंबर 6 प्रवेद। 6 प्रेजेंट मैम। 6 प्रेजेंट। 9 अयांश। प्रेजेंट मैम। 10 दीपांशी सॉरी। Present, ma'am. 15 मारूफा। 18 पराहर्ष। प्रेजेंट मैम। पराहर्ष प्रेजेंट मैम। ओके 20 प्रतिभा। Present, ma'am. 21 राजनंदिनी। Present, ma'am. 22 रितिका। 27 श्रेया। Present, ma'am. Present, ma'am. श्रेया कहाँ चली गई थी बीच में? श्रेया आप कहाँ चले गए थे बीच में? 2-3 क्लासेस में नहीं हो। तेजसी 28। Present, ma'am. Anybody who left the class? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा मैं एक 14। ठीक है। So students, anybody who want to ask any question, or you can leave the class. Thank you, ma'am. Okay, thanks for watching here.